वेरिएशन ऑफ सिंपल हमारे पास में जी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो उसमें चेंजेस होंगे वो किसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, gravity changes when we go above or below the surface of earth. Yes or no beta? Yes, sir. Acceleration due to gravity changes when we go above and below the surface of earth. Okay, and the value of, or we can say the acceleration due to gravity at the surface of earth is given by G is equal to G m e upon r e square. Yes or no बेटा? यस, एम ई की जगह पे हम एम भी यूज कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम किसके लिए देख रहे हैं, स्पेशली अर्थ के लिए हम बात कर रहे हैं। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिपेंड on the acceleration depend on the universal gravitational constant and mass of the earth and radius of the earth, and we have already know the mass of the earth and radius of the earth, and the value of g is 9.8 meter per second 9.8 square. meter per second square. Meter per second square. Yes or no? We have already calculated that value. But what happened when we go above the surface of the earth and below the surface of the earth? Then acceleration due to gravity changes, and how it changed will calculate in the next topic. Okay. So first one क्या होगा बेटा, variation of g with हाइट, और हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कई जगह आपको एल्टीट्यूड भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप एल्टीट्यूड भी आप ले सकते हैं। ओके, यस और नो बेटा? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस, चलो ओके। Yes. सो व्हाट वी हैव, सपोज दिस इज द अर्थ, यस और नो बेटा? and m is the mass of the earth, and this is the center of the earth, and this is the actual height of the object, mass m. Yes or no beta? Yes, suppose we have a point like this, and this point is a, and the surface of the earth is the point b. तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, this is the radius of the earth. Yes or no? This is the radius of the earth, and this is the height from the surface of the earth, where we have to calculate the acceleration due to gravity, and by that value we can calculate the acceleration due to for every point above the surface of the earth. Yes or no? Yes. So what we have, consider earth is a sphere of
sphere of radius r and mass m. Yes or no, beta? Then Yes. the acceleration due to gravity at the surface of the earth, at the surface of earth, is given by g is equal to g m by r square. Yes or no, beta? This is the equation number 1. Yes, sir. Correct? So what we have next? Next, consider a point A. Consider a point A at a height h above the surface of the earth. Yes or no? Above the surface of the earth. Then acceleration due to gravity at point A will be क्या होगी बेटा, बताओ जरा. जी एच इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, देखो जी एम अपॉन. अब देखो यहाँ पर हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जो डिस्टेंस होती है बेटा, कहाँ से मेजर की जाती है बताइए जरा. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट. यस और नो? Center of the फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट. और जब सेकंड केस में हम बात करेंगे, हाइट एट पॉइंट इज प्लेस्ड एट अ हाइट h, देन the height will be equal to r plus h from the center of the earth. Yes or no, beta? Sir, R plus H. This is the actual height. Yes or no? And Yes, this sir. is equal to r plus h. So we have gh is equal to r plus h whole square. Yes or no? Yes. This is the equation number 1. So how we can calculate the acceleration due to gravity at a height h? Then what we can do, divide the equation number 1 by equation number 2. So what we will get, g upon gh is equal to gm upon r square and divided by gm upon r plus h whole square. Yes or no, beta? Yes or no? सर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? बेटा क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पर h हाइट पर कितना होगा. यस और नो? बेटा डिवाइड इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट विच इज एट अ हाइट ऑफ h, देन हमको उसको क्या करना है बेटा, दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है. देन वी कैन कैलकुलेट बाय कंपैरिजन with the acceleration due to gravity at the surface of the earth. That's why we are dividing this. Yes or no? अगर आप डिवाइड नहीं करोगे तो आप एक सेकंड मेथड फॉलो कर सकते हो. देखिए यहाँ पर, चलिए फर्स्ट हम इस मेथड को देख लेते हैं, देन मैं आपको सेकंड मेथड भी मैं आपको बताता हूँ. ओके बेटा? यस सर. यस, चलिए ओके. फर्स्ट देखिए यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा, तो देखिए यहाँ से कुछ वैल्यूज हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं अगर लिखता हूँ बेटा, तो g अपॉन जी एच इज इक्वल टू, मैं लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा, देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर. यस और नो बेटा? एंड यहाँ पर मल्टीप्लाइन के साइन के साथ में देखो ये डिनोमिनेटर वाले टर्म है, ये वाली. यस और नो? ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है तो ये ऊपर चली जाएगी ऐसे. Yes, sir. यस, तो जब ये ऊपर चली जाएगी तो ध्यान से देखना क्या बनेगा बेटा,
R plus H R plus H whole square divided by GM. Yes or no? Yes. Now we can cancel the some quantities here. G is cancelled by G and capital M is cancelled by capital M. Yes or no? Then Yes. हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू हमें मिलेगी बेटा वो क्या मिलेगी देखो, G अपॉन जी एच इज इक्वल टू हमारे पास होगा यहाँ से G अपॉन जी एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बेटा, R प्लस H होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. Yes or no? Yes. Yes. Now what we can do right now, we can take the R common from the above term. Yes or no? Yes, sir. R कॉमन ले सकते हैं. ध्यान से देखना बेटा, R कॉमन आएगा तो कैसे आएगा देखो, अंदर देखो स्क्वायर है बेटा, तो R में बाहर लूंगा तो बाहर भी स्क्वायर आएगा देखो. यस और नो? और अंदर कॉमन होगा तो यहाँ से तो पहली टर्म में से तो R बाहर आ गया बेटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस H बाई R होल स्क्वायर. यस और नो? डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. देखो ये वाली R प्लस एच की जो टर्म है ना, यहाँ से हमें R कॉमन लेना है. देखो इसमें से मैं R कॉमन लूंगा तो R बाहर आ जाएगा. तो R देखो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, ये R बाहर आ गया तो ये वाला R तो बाहर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा अंदर. और इस वाली टर्म में देखो यहाँ पर R है नहीं है ना इसमें, तो R इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ऐसा होगा. यस और नो? यस सर. Yes, sir. है ना? सर R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना सर? Yes बेटा, that's why we are taking the common from above term. So R square is cancelled by R square. So basically what we will get, G upon GH is equal to 1 plus H by R whole square. Yes or no? तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट H. यस, तो GH अपॉन GM करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर हो जाएगा देखो. यस और नो? रेसिप्रोकल किया बेटा मैंने इसको, है ना? Yes, sir. यस. देन व्हाट वी विल गेट, इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दूंगा तो GH हमें मिलेगा बेटा, वो मिलेगा G अपॉन 1 प्लस H बाई R होल स्क्वायर. Yes. यस, यस और नो? एंड यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट एट अ हाइट h, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें प्रोवाइड होगा किस पॉइंट से, इस फॉर्मूले से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट. यस और नो? Sir. यस. अब बेटा देखिए, यहाँ से अगर मैं हाइट को इंक्रीज करूंगा बेटा, तो जैसे एज द हाइट में इंक्रीज करूंगा, देखना ध्यान से, अगर मैं हाइट को इंक्रीज करूंगा तो जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, चलो बताइए. इंक्रीज होगा सर, मतलब इंक्रीज होगा. देन मतलब जो वैल्यू मिलेगा वो डिक्रीज होगा. यस, देन दिस फैक्टर विल इंक्रीज. यस और नो? और जब ये फैक्टर इंक्रीज Value होगा will बेटा, decrease. तो हाइट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. यस और नो? Decrease होगा. Yes. It will decrease. So we Larger can the write value in the denominator, less the answer. less of the value of acceleration due to gravity. Okay. Therefore हम क्या बोल सकते हैं बेटा, therefore if the value of, if the height, ऐसे बोल सकते हैं, if the height is increased, then acceleration due to gravity, will increase or decrease? Decrease. Will decrease. Increase. Yes or no? So this is the equation number 3. So from equation number 3, we can write GH is equal to G upon 1 plus H by R whole square बेटा.
यस और नो। देन ध्यान से देखना, मैं ये जो डिनोमिनेटर है बेटा इसको मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा देखना, जी एच इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एच बाई आर रेज टू पावर -2। यस और नो, Yes, sir. Yes. लिख सकते हैं बेटा? यहाँ तो कोई इश्यू है किसी को, बताइए जरा। No, sir. No, sir. नो, चलिए No, अब sir, इसके no. साथ में क्या होता है बेटा कि व्हेन, जब हमारे पास में हाइट क्या होगी बेटा, बहुत कम होगी, क्या होगी, इफ द हाइट h is very small, very small in comparison with r. Yes or no? So what we can have, we can write the acceleration due to gravity is equal to g multiplied by, देखो यहाँ पर जो पावर में है ना बेटा, यहाँ पर ये पावर हम कहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन यहाँ पर बनेगा बेटा -2h/r। यस और नो? यस और नो बेटा? Sir, minus. हाँ देखिए, ये -2 है ना बेटा, ये -2 मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। Okay, sir. Okay. ओके, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, व्हेन h इज वेरी 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 लेस देन r। यस और नो? जब हमारे पास h बहुत कम होगा, सपोज हमारे पास ऐसे बेटा 10 मीटर, ठीक है, 100 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, ठीक है, अब तो हम कहाँ तक जा सकते हैं बताओ, अप टू 5 किलोमीटर और अप टू 5% ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। Yes or no? H is very less than as compared to R. So H approximately equal to 5% of the radius R. Then we can apply the formula direct and we can calculate the acceleration due to gravity at that point. Yes or no beta? सर ये 2 का Yes, कैसे sir. वो समझ में नहीं आया। बेटा 2 का समझ में नहीं आया, उसके लिए आपको मैथ्स में थोड़ा सा जाना होगा। चलिए पहले आप इसको एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, देन मैं आपको 2 का कॉन्सेप्ट। Next, how to calculate the percentage change in G Sir. at a height h। हाँ बेटा, सर आपने वो बताया नहीं, वो 2 का कैसे हुआ था पावर। हाँ बेटा बता रहा हूँ, 2 का ही बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो पहले ना, फर्स्ट ही देखो, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ से जो हम लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या, जी 1 माइनस 2h/r। यस और नो? तो यहाँ से देखो बेटा, जब मैं अंदर, अगर g को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो g इज इक्वल टू जी माइनस 2h/r, 2gh/r। यस और नो? सो व्हाट वी गेट, g माइनस ऑफ gh इज इक्वल टू 2gh/r। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए? यस सर। Yes. Now what we can get, g minus gh upon g is equal to 2h/r। Yes or no? यस सर। Yes. Now what we can say, that g minus gh is the change in acceleration due to gravity. Yes or no beta? Delta G. Delta g, very good. So we can say that here g minus gh is equal to delta g upon g is equal to 2h/r। Yes or no? And when we divide the change in any quantity with respect to the original quantity, then we will get the percentage value by multiplying that value. Yes or no? परसेंटेज निकाला बेटा सब लोगों ने? परसेंटेज पढ़ा है ना? Yes, sir. Yes.
yes or no? sir. So we can say that, हाँ बोलिए बेटा, परसेंटेज चेंज इन G will be equal to क्या होगा बताइए मुझे, डेल्टा G on G percent is equal to G minus GH upon G percent is equal to minus, sorry, plus 2H by R multiplied by 100. Yes or no बेटा? Yes, sir. Yes. Yes. अगर हमारे पास में क्या होगा, if the percentage change in height is 1% and percentage change in radius of the earth is 2%, sorry 2%, not percent, radius is constant. So if the height is increased by 10%, is increased by 10%, then percentage change in G will be equal to 2 into 10 divided by R. Yes or no बेटा? कितना होगा? Yes or no? Yes, sir. है ना? तो डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस में जैसे गिवन होगा कि परसेंटेज चेंज अगर हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, देन उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी हाइट का।